and the big thank to HHF also. They are sharing their expertise and their experience with us, and we have learned from the HHF speakers. We are very grateful to have you today on this platform. And let me share the today's topic, that is rapid and gentle cure of acne vulgaris by homeopathy. Now let me introduce Dr. Vanna ma'am. She is a dedicated homeopathic practitioner serving in Chhatrapati Sambhaji Nagar, Dahanu and Andheri. She follows the HHF method in her clinical practice, which has enabled her to successfully treat countless cases across a wide range of conditions, including skin disorders, PCOD, psychiatric illness, and many more. Dr. Mishra holds a special interest of and expertise in managing neurodevelopment disorders such as ADHD and autism, offering holistic and individualized care to her patients. With a compassionate approach and a deep commitment to healing, she continues to make a meaningful difference in the lives of those she serves. And today she's come up with a very interesting topic, that is rapid and gentle cure of acne vulgaris by homeopathy. So, ma'am, the very first question I would like to ask, why Yeah, did you choose this topic? because this is a very common problem which everyone faces. And you know, like homeopathy, many myths are about that it is a very slow process. Then it can't cure all the cosmetic cases. It can be given only for chronic cases, acute acne and other skin problems can't be cured. So I Yes. thought cosmetic is very important for each and every person, whether it is a girl or it is a boy. But if you prescribe it properly, taking the person in concern, it can be cured very fast with with a proper approach. So I thought let's share that such beautiful results are also possible with homeopathy. So I thought to share it. Thank you so much, ma'am, for picking up this very important topic. And as we see that many times patients get so desperate about the treatment, they get tired of taking a lot of medicines and topical ointments and Ointment. whatnot. They have gone through so many dermatologists and lot more, still they did not get the treatment. So today we are going to again having a more belief in homeopathy. So, ma'am, without wasting, ma'am, please start. Yeah. Okay. So have the delegate like I'm audible, right? Yes, ma'am, yes. So okay. So so people have come. Actually, I'm new to this, so I'm just asking you. No, no, I'm sure, sure. Ma'am, many Okay. please has already come. Okay. Okay. So I have to share the screen, right? Right, ma'am. Is it Yes, visible the screen? yes, ma'am, it is visible. Okay. So first of all, thank you, Mansi, and I think 360-degree homeopathy, right, for giving me this privilege, and also HHF, okay, for giving me this platform because of which I'm able to share my cases, my knowledge. Thank you so much, HHF and 360 homeopathy. Okay, so this is my topic: rapid and gentle cure of acne vulgaris by homeopathy. So I'll speak in Hindi as well in between. तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, एनी प्रॉब्लम, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. कल का सेशन बहुत ही अच्छा लिया डॉक्टर सुजाता ने, तो जिसमें
हमने हाउ वाई आउ अच्छे से पढ़ा, आईपीआर के बारे में भी अच्छे से समझाया। तो उसके आगे हम जाएंगे। अभी एक सिंपल ही केस है, आप लोग जिसका मैंने पेशेंट की ही लैंग्वेज में बताने की कोशिश की, सो दैट जैसा केस है वैसे आप उसको पढ़ पाओ। अगर कोई भी उसमें कोई क्वेरी है तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हो। तो लेट्स बिगिन। So first of all, gratitude to Dr. Samuel Hahnemann for this wonderful homeopathy. Then our gurus, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Ashok Mohanty sir, जिनकी नॉलेज कंटिन्यूस मेरे ख्याल से डिकेड्स तक जाती रहेगी। इनसे जितना जो लोगों ने, जो दिग्गज लोगों ने सीख चुके हैं, वो हमें कंटिन्यूस उनके नॉलेज से शावर करते रहते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। देन डॉक्टर कृष्ण कुमार दिंडे, a very powerful mentor and guru at HHF, who is always there to support all the students. Thank you so much, sir. Dr. Mayuresh Mahajan, sir. Thank you. So I think let's start the case. उसके पहले एक स्लाइड नहीं डाली है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी, जो बहुत ही दृढ़ निश्चय से इतने सारे सेशंस और इतना बड़ा सेमिनार में पार्ट लेने का कोशिश करती हैं, नए नए लोगों को चांस देती हैं, बहुत ही ट्रस्ट करके, बहुत ही अपनी मेहनत से सब लोगों को हेल्प करती है आगे आने के लिए। सो थैंक यू सो मच डियर डॉक्टर पल्लवी फॉर गिविंग me this privilege and opportunity to share my case. Thank you. And also thank you to my family, my dad, my mom, my brother, and everyone. Okay, so let's start the case. So ये केस है एक लड़की के बारे में, जो 22 years old female. She came with the complaints of resistant acne vulgaris. I'll just share the photo after this slide. So this was since 1.5 से उसे ये तकलीफ थी, 1.5 years, which was treated by various pathies, that is Ayurvedic medicines were taken. उसमें जो लेप होते हैं, काढ़ा होता है, वो सब लिया। Allopathic medications along with long term on antibiotics, ointments and pills. काफी सारी उसने थेरेपीज भी करवाई थी, जिसके बाद उसके एक्ने कम तो नहीं होते थे, उल्टा और रेड होते थे। थक हार के उसने 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद लीच थेरेपी, जो बहुत ही पेनफुल होती है, पर किसी के बोलने पे उसने वो भी किया था। तो मेरे पास जब आई थी फर्स्ट विजिट में, तभी मैंने कहा था क्या क्या किया है, तो उसने बोला लीच थेरेपी, जिसमें लीच लगाया जाता है एंड आई थिंक वो कुछ सक करते हैं ब्लड। इतनी वो तंग आ गई थी और वो बेटर ही नहीं हो रहा था, तो ये सब चीजें उसने ले चुकी थी। तो आप देख सकते हो स्लाइड्स में कितना भयानक एक्ने था उसका। रेजिस्टेंट इसलिए क्योंकि काफी सारी चीजें उसने ली, बेंजोइक मेडिसिन, एवरीथिंग अप्लाई, ऑइंटमेंट्स भी अप्लाई किया और ओरली भी लिया, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो वो जब मेरे पास आई थी तो ये पूरा इतना सारा एक्ने लेकर आई थी। तो ये कंजिक्यूटिव पिक्स है, फर्स्ट वाला लेकर आई थी, फिर धीरे धीरे जो कम होता गया उसके पिक्स है, आप लोग देख सकते हो जूम करके। ठीक है, और ये केस को कुछ भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन मैंने कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ ओरल मेडिसिन ही दिया है। ओके, सो उसकी हिस्ट्री मैं बताती हूँ। पहले तो शी वॉज बींग रिफर्ड टू मी फ्रॉम वन ऑफ माई पेशेंट्स बॉडी लैंग्वेज। मैं कोई केस मेरा ऑलरेडी चालू था और वो कंसल्टेशन रूम में ही बैठी थी, तो शी वॉज सिटिंग इन माई क्लिनिक इन वेटिंग रूम, was observing me while I was consulting other patient. She was sitting with one leg folded on chair. She took one of my book which was on my table and was reading book, and in between she was smiling, looking at me. Okay, तो मेरा ऐसे केस यहाँ पे चालू है, वो सामने ही बैठी थी, मेरा वेटिंग भी सामने ही है, तो वहां बैठ के वो मुझे स्माइल कर रही थी, बुक पढ़ रही थी, देख रही थी। इस तरीके से उसका बॉडी लैंग्वेज था। जैसे हमने कल स्टडी किया कि पेशेंट का स्टार्ट कहाँ से, आप केस आपका चालू होता है, तो वेटिंग से ही चालू होता है, कि आपका जब केस चालू है तो वो आपसे जैसे क्या कर रहा है वहां पे।
तो मैंने उससे पूछा, फिर उसका कंसल्टेशन आया, वो आई सामने बैठी, तो मैंने पूछा कि हाउ कैन आई हेल्प यू। देन शी सेड कि आई हैव दिस स्किन इरप्शन एंड सम फंगल इन्फेक्शन ऑन थाइज एज वेल। तो एक्चुअली उसको फंगल इन्फेक्शन थाइज पे भी थे, which was on the stomach as well, thighs and back area. Okay, तो it was very मतलब काफी बड़ा एक्सटेंसिव फंगल इन्फेक्शन था, जहाँ पे उसने काफी सारे क्रीम्स लगाए थे, ओरल ये एंटीबायोटिक और एंटी फंगल भी लिया था। तो मैंने उससे पूछा कि फंगल इन्फेक्शन आप बता सकती हो क्या। तो उसने कहा श्योर। एंड उसने एकदम से अपना दिखाना शुरू किया, लाइक नी के उधर था थोड़ा सा, वहां दिखाया, बैक एरिया का दिखाया, स्टमक का दिखाया। So she said sure. She started showing me the fungal infection without much hesitation. She also sat next to me describing her complaints. तो मैंने इतना ही पूछा तो वो बताने लगी, ये मुझे इतने दिन से हुआ, ये ऐसा हुआ, फिर ये पीछे हुआ, फिर ये बढ़ता ही चला गया, इसमें मैंने ये किया वो किया, वो सब उसने बोला। तो थोड़ा बहुत ऐसे इधर उधर की बात की, जनरल बात कर रही थी। फिर मैंने उसे पूछा कि कोई स्ट्रेस है आपको या कुछ प्रॉब्लम है आपको, अगर आप ये 8-9 महीने से इतना सहन कर रहे हो तो ये पेशेंट ने जो नरेट किया वो मैं आपको बताती हूँ। उसने कहा कि यस लिटिल हैव क्लियर्ड माय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, शी स्कोर्ड टॉप मार्क्स, ओके, देन चोज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, बट व्हेन द कॉलेज स्टार्टेड इट हैड नथिंग रिलेटेड टू स्पेस, सो आई डोंट वांट टू डू दिस नाउ। शी सेड कि ये मैंने चूज किया था कि ये बहुत ही अच्छा साइंस होगा, इसमें स्पेस के बारे में स्टडीज होगी, ये सब बहुत अच्छा अच्छा होगा, तो उसने वो चूज कर लिया। लेकिन बाद में जब वो कॉलेज में गई तो उसे पता चला कि अरे यार ये तो ये नहीं है, मुझे तो ये सब नहीं पढ़ना है। तो वो मुझे बोल रही थी कि मुझे अब ये सब नहीं पढ़ना है। एंड फिर उसने थोड़ा सा खुद से ही और आगे का बताया कि सॉरी, सो आई डोंट वांट टू डू दिस नाउ, वांटेड टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग। सो उसे कुछ इंटरेस्टिंग करना था, जो अभी वो कर रही थी वो उसे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। नाउ आई वांट टू चेंज दिस, अभी उसे चेंज करना है। एंड उसने थोड़ा सा और अपना हिस्ट्री बताया कि आई हैड ऑल्सो शी ऑल्सो हैड ब्रेकअप विथ हर बॉयफ्रेंड, सो ही स्टॉप्ड मैसेजिंग हर एंड ही इज नॉट टॉकिंग टू हर। ओके, तो वही बता रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड था, उससे मेरा अभी ब्रेकअप हो गया है, वो मुझे मैसेज भी नहीं कर रहा है, बात भी नहीं कर रहा है। उसके पहले वो बता रही थी कि कैजुअल फ्रेंडशिप थी, बाद में उसे वो अच्छा लगा, उसे वो अच्छी लगी, ये मैसेजिंग करने लगी, बातें होती थी इनकी। फिर अचानक कुछ ऐसी छोटी मोटी बात हुई, तो ये इसने कहा कि उसने एकदम से मैसेजिंग करना बंद कर दिया, तो ये बहुत ही तकलीफ में रहने लगी। बाद में 6-7 महीने बाद एकदम डिप्रेशन में भी चली गई थी। I don't know why he is doing this. I told my friends also. Mom also knows. I always do good for all, but why people are like this? She said this. Doctor, you tell me, why is he doing like this? One of my roommate also is very selfish. I do everything for her, but she doesn't even talk properly and is opportunistic. तो जब उसने कॉलेज का हिस्ट्री चालू किया तो वो अपने आजू बाजू की भी चीजें बताने लगी, जिसे हम करते हैं कहते हैं आईपीआर। तो सबसे मेन उसका जो आईपीआर उसे तकलीफ दे रहा था वो उसका कॉलेज के था, उसका वर्क प्लेस फिलहाल उसका कॉलेज है। तो वहां उसके फ्रेंड जो उसके रूममेट थे उनसे उसे कुछ तकलीफ होती थी। उसे लगता था कि वो उसकी हरदम हेल्प करती थी, पर वो उसकी फ्रेंड उसकी हेल्प नहीं करती थी, वो थोड़ी अपॉर्चुनिस्टिक थी। और ये फ्रेंड भी जो बॉयफ्रेंड बना, पहले अच्छे से बात करता था, फिर अचानक बात करना बंद कर दिया। तो उसे वही लग रहा था कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ। फिर आगे उसने कहा वन ऑफ माई गुड फ्रेंड ऑल्सो गेट्स फ्रीक्वेंटली एंग्री, आई डोंट नो व्हाई, सो आई टेल दैट टू माई अदर फ्रेंड। मतलब ये उसका और एक दोस्त जो उससे बात गुस्सा हो जाता है बार बार, ये चीज भी वो उसके तीसरे दोस्त को बताती है। समझे, एक बॉयफ्रेंड हो गया, एक रूममेट हो गई, और एक दोस्त है। तो और एक भी जो दोस्त है वो भी कभी भी गुस्सा हो जाता है, तो वो किसको बताएगी, अपने चौथे दोस्त को। तो एंड समटाइम दैट अदर फ्रेंड आल्सो डजंट रिप्लाई फास्ट, ओके। अब वो चौथे के बारे में भी बोल रही है। तो उसका बोलना हर किसी के बारे में है कि मैं सबसे बात करती हूँ, मैसेज करती हूँ, पर ये लोगों का रिप्लाई नहीं आता है, कोई ना कोई रूठता रहता है, मैं किस किस को कब कब मनाऊं। और वो जो ये सब चीजें होती है ना, वो एक दूसरे को बताती रहती है कि ये चिढ़ गया तो उसको बताएगी, वो चिढ़ गया तो इसको बताएगी, ऐसा। तो आगे लिखा है देन आई कंप्लेन टू माई फर्स्ट फ्रेंड। तो मतलब ये उसका सर्कल चलता रहता है, कोई उसको रिप्लाई नहीं करेगा दूसरे को पूछेगी, अरे ये मेरा दोस्त क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा है। फिर वो जब रिप्लाई करेगा और ये वाला नहीं करेगा तो वो उससे बोलेगी कि अरे यार वो पता नहीं क्यों नहीं रिप्लाई कर रहा है, ऐसा। तो ये उसका सर्कल चलता रहता है।
तो ये चीजों से वो परेशान हो जाती थी। तो मैंने पूछा इतना सब चीजें तो बताई, पढ़ाई के बारे में भी थोड़ा पूछ लेते हैं। तो व्हाट अबाउट योर कॉलेज स्टडीज? पेशेंट, इफ आई एम मेंटली फाइन आई कैन स्टडी वेरी वेल, if disturbed, I cry, tell my mom, my cousin, and my brother. But he also doesn't console me. Whoever is my close, I tell them. But people are rude and selfish. But still, I don't like to end relations. रोते रोते थोड़ा सा रो रही थी और बता रही थी, I don't know what to do. I am messaging my boyfriend, he is not responding again. तो इधर आप उसके बारे में जनरल, आप अगर वो लड़की के बारे में सोचो तो आपको समझेगा कि अगर वो मेंटली अच्छी है, स्टेबल है, तो सब चीजें बड़े अच्छे से करेगी। पर अगर किसी को रिप्लाई करेगी, किसी को कुछ बात करेगी, उसने अच्छे से बात नहीं किया, जो बिहेवियर वो चाहती है वैसा बिहेवियर उसे नहीं आता है, तुरंत वो नाराज हो जाती है, नाराज या हर्ट हो जाती है, हर्ट होके नाराज हो जाती है, लेकिन फिर भी बात करेगी, फिर भी मैसेज करेगी, मैसेज करना नहीं छोड़ेगी, उसी टाइम दूसरे को करेगी, फिर दूसरे से कोई तीसरे को नहीं। उसका तो ये भी बोलना है कि घर में भी वो जब अपनी चीजें बताती है अपने मम्मी को, डैडी को, भाई को, भाई काफी शाय है, तो भाई क्या बोलेगा, अभी तो भाई शांत रहता है, पर इसका एक्सपेक्टेशन क्या है, यहाँ से हमें समझता है कि यार वो भी मुझे नहीं कंसोल कर रहा है, उसने तो मुझे समझना चाहिए। तो ये घर के आईपीआर से भी उसका एक्सपेक्टेशन क्या है ये देखिए। जब भी कोई पेशेंट हमें कोई कंप्लेन बताता है तो इसमें इसकी एक्सपेक्टेशन भी समझती है, जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है। उसने वही कहा कि उसे लग रहा है, ऐसे डायरेक्ट धीरे धीरे बताया कि सब लोग ऐसे ही मिल रहे हैं मुझे, वहां पे भी ऐसे हैं, यहाँ पे भी भाई ज्यादा मुझे मतलब कंसोल नहीं करता है, मेरे कजिन्स भी जो जिनको मैं मैसेज करती हूँ वो बात करते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं और फिर रिप्लाई नहीं करते, और फिर ये रोने लग जाती है। तो ये सबसे जो ये रिलेशन है ना, इसके हर जगह इसको हर्ट हो जाता है, इसको जो लगता है ये बोलती है और हर्ट हो जाती है, एंड देन ऐसे ही रह जाती है। तो अभी इस पे से आप लोगों को क्या लग रहा है, कोई कुछ बोलना चाहेगा चैट बॉक्स में? कुछ एनालाइज आप कैसे करोगे इसको, ये लड़की को क्या एनालाइज करना चाहोगे? थोड़ा सा आप लोग बोलिए, तो फिर मैं आगे का बताती हूँ कि मैंने उसे कैसे एनालाइज किया और कैसे ये ट्रीट किया है। तो मानसी, डॉक्टर मानसी। Yes, ma'am. So, any guesses about the rubrics, or how do you feel that we can look into this case? Like, we have a young girl, she's very sensitive, intelligent, and had an affair and was badly disappointed. So, how how these lines you have read, कैसे इसको हम interpret कर सकते हैं? मैम, I think we have one. So one is saying disappointed love. ओके, ओके। Any other? आई एम अनेबल टू सी दी चैट, आई डोंट नो व्हाई। ओके, Ma'am, it's in question and answer box. जस्ट होल्ड ऑन, सी। ओके, ओके। Yes. Like another, Maninder Kaur is saying she's very communicative, desire consolation, लवली, लवली, नाइस। consolation, desire, seeks ओके, validation. okay, nice, nice. Who said this? श्रद्धा सोलंकी, राइट, वेरी नाइस डॉक्टर श्रद्धा। बराबर आप एकदम बराबर। मैंने भी यही मतलब यही सोचा, और यही चीजें एकदम लगती हैं लड़की को देखकर, एकदम बराबर, वेरी नाइस। और कोई कुछ बताना चाहेगा डॉक्टर्स? थोड़ा सा इंटरैक्टिव हो जाएगा। 30 सेकेंड, अदरवाइज आई विल प्रोसीड। ठीक है, कम्युनिकेटिव, एक्सपांसिव, कॉन्टैक्ट, डिजायर, नाइस, सिंपैथी, डिजायर, राइट। आई थिंक आई विल प्रोसीड, राइट। Yes, ma'am. या, सो मैंने जो एनालाइज किया है मैं बताती हूँ कि द फीमेल इज 22 years ऑफ एज, वेरी सेंसिटिव, इंटेलिजेंट, एज शी स्कोर्ड वेरी गुड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, शी वाज वन ऑफ मतलब फर्स्ट 5 टॉपर्स में से थी वो। बट बाद में टॉप करने के बाद वो अपने करियर से हैप्पी नहीं थी और लोगों से भी नहीं थी, तो दोनों चीज से वो हताश थी। ठीक है, फिर अफेयर हुआ, उसमें भी थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई, डिप्रेस्ड हो गई। काफी फ्रेंडली थी सबसे, शी वॉज वेरी फ्रेंडली विथ एवरीवन बट वॉज इजीली हर्टेड, wanted friends who could understand her, brother who could console her,
तो यहाँ ना हमें ये देखना है कि लड़की की सोच क्या है, उसे क्या चाहिए। हर जगह हर कोई कैसे किसी को हर्ट कर सकता है? हर कोई तो गलत नहीं होगा, इसका मतलब हमारा ही कुछ डिजायर ज्यादा है, मतलब हमें ही ऐसा चीज चाहिए जो कहीं नहीं मिल रहा है ना? She was very every time nice to everyone. Used to tell her whole life to each person she considered friend. तो यहाँ पे से ये भी दिखा कि हर जगह वो एक्सपेक्ट करती है कि मैं सब आपको बता रही हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, सब अच्छा है, तो आप भी मेरे से वैसा ही बिहेव करो। जहां पे वो जैसा सोचती कि वैसा बिहेवियर नहीं आता है, हर्ट हो जाती थी, बुरा लग जाता था। भाई है जो बाकी चीजें सब करता है, पर बस उसको कंसोल नहीं किया, या उसने जो चीजें बोली उसे जैसा उससे एक्सपेक्टेशन है वैसा नहीं आया, वहां भी वो हर्ट हो गई। फ्रेंड्स ने रिप्लाई नहीं किया, कोई फ्रेंड ने उसकी चीजें नहीं समझी, रूममेट ने कभी जैसा उसे लग रहा है वैसा नहीं किया, तो वहां भी हर्ट हो जाती थी। ठीक है, अभी हम ये सोच सकते हैं कि क्या इसके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थे, या ये हर चीज बैड पार्ट में ले लेती थी, सेकंड, या तीसरी क्या चीज है जो इसको इतनी हर्ट हो जाती थी, या फिर इतनी जल्दी क्यों ये ऑफेंड हो जाती थी। तो ये इसमें हमें सोचना है। और ये भी कि कोई इतने इजीली सबसे ये बातें करेगा क्या हर चीज में, हर जगह हर फ्रेंड को कैसे ये उतना ही क्लोज फ्रेंड सोचती है। मुझे भी आकर वही बोलती थी कि ये मेरा फ्रेंड है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, तीसरा ऐसा करता है, चौथा ऐसा करता है, सबको सब चीजें एकदम इजीली बोलती है। ठीक है। Even to me, she said everything in first consultation without thinking anything, was smiling as if even I am her friend. Okay. The girl wanted the world around her to be like her. How was she now? The question is, how was she? So I think she was open, simple and clear. Okay. क्योंकि मेरे पास भी आकर फर्स्ट इसमें सब चीजें बता दी, हॉस्टल में भी फ्रेंड के लिए करती थी, फिर एक्सपेक्ट करती थी, बॉयफ्रेंड के साथ भी अच्छा ही कैरी हो रहा था, फिर कुछ तो हुआ, हर्ट हो गई। ओके। So to me it came as if she wanted my consolation and sympathy as well, क्योंकि फर्स्ट इसमें इतना सारा कौन बता देगा और क्यों बता देगा, वाई, वाई सोचना जरूरी है। ठीक है, तो वो इतना सारा कोई भी फर्स्ट बार क्यों बताएगा, इतना सारा क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कोई भी, आप सेकंड थर्ड इसमें आप बताओगे अगर डॉक्टर आपको पूछता है, तो इसने लेकिन हर चीज इतनी इजीली और इतना फर्स्ट में बता दी। तो मैंने इसको यही समझा कि इसको ब्रदर से भी सिंपैथी चाहिए, मुझसे भी चाहिए, और इसे चाहिए कोई पैम्पर करे, कोई संभाले। ठीक है। तो ये सब चीजों पे जैसे एकदम कॉमन ड्रग क्या रहेगी, पल्सिटिला, जो मैंने प्रिस्क्राइब कर दी थी बने, जिसपे लेकिन उससे कुछ भी नहीं, मैं 1 वीक के बाद मैंने उसे बुलाया था पर कुछ भी चेंज नहीं आया, इरप्शंस वैसे के वैसे ही थे। ओके। तो फिर मैं वापस से मैंने एनालाइज किया, इतनी फ्रीली बात करती है, काफी कम्युनिकेटिव है। वो जब आती थी सेकंड थर्ड कंसल्टेशंस में तो मुझे भी मेरे बारे में पूछती थी, आपका प्रैक्टिस यहाँ कैसे चल रहा है, दानू में कैसा है, अंधेरी में कब जाते हो, तो मेरी चीजें भी वो पूछती थी। और बैठेगी सब बात करेगी, थोड़ा सा अपने कंप्लेन के बारे में बताएगी, उसके बाद मेरा भी पूछती थी। और बीच बीच में मैंने लिखा नहीं है, बताती हूँ, तो बीच बीच में जब अगर मेरा पेशेंट चालू है और वो बैठी हुई है, तो वो ऐसे पेन लेके, मेरे पास एक बोर्ड है तो वहां पे लिखने लग जाएगी, ऐसे ड्राइंग करने लग जाएगी, ये कुछ करने लग जाएगी, और फिर ऐसे बाजू में आके बैठ जाएगी एक पैर ऊपर करके, जैसे मैंने कहा। तो फिर मैं भी ये सोचती थी यार ये क्यों नहीं हो पा रहा है। फिर हर चीज उसे ना बड़ी दया भी आती थी, जैसे दोस्तों की बड़ी मदद कर देती थी हर की, इसे कोई जब चाहिए इसे लगता था कि तब कोई नहीं रहता है, या फिर बात करती रहती है, कोई भी चीज इसकी हर्ट हो जाती है, लोग बात ही नहीं करते। और दूसरी की सफरिंग रहती थी, कुछ तकलीफ रहेगी तो सबसे पहले ये मदद मदद भी करेगी। एक्सीलेंट इन एकेडमिक्स, मतलब उसकी थोड़ी डिटेलिंग बताती हूँ कि जब भी ये लोग कोडिंग करते हैं, शी इज राइट नाउ शी इज अ सिलिकॉन इंजीनियर एट गूगल। ओके। तो बाद में उसने अपना करियर आगे चलाया, तो वहां पे भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती थी ना, ये सबसे पहले उनकी सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व कर देती थी। बट इसे कोई प्रॉब्लम आती थी तो कोई सॉल्व भी नहीं कर पाता था और कोई अप्रोच भी ज्यादा नहीं करता था, अगेन ये हर्ट हो जाती थी। तो मुझे वही लगा कि बड़ी सिंपेथेटिक है, बहुत लोगों की मदद कर रही है।
सब लोग उसको अपने आजू बाजू चाहिए, इतने सारे दोस्त चाहिए, है ना। बहुत ही डिसअपॉइंट भी हो गई है, मुझे भी इतना मतलब सब बता रही है। फिर अपने लीजेंड्स भी जो थे एकदम फटाक से बता दिया नेकेड डिजायर, तो मुझे लगा फॉस्फरस है। पहला मुझे सिंपथी लगा था, इससे मैंने वो प्रेफरेंस मतलब वो सबसे ज्यादा सोचा। बट सेकेंड टाइम मैंने सोचा कि ये शायद फिर फॉस्फरस हो सकता है, सो अगेन एनालाइज करके सिंपथेटिक, कम्युनिकेटिव, लाइट डिजायर, मैंने उसको फॉस्फरस 1 m दिया। बट अगेन आफ्टर 10 days कोई भी रिजल्ट नहीं आया, स्किन लीजन्स वैसे के वैसे ही। तो मुझे लगा कि ये मुझे क्या नहीं समझ रहा है, तो आप लोग समझिए, मैं आपको ये मेरे जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन से क्यों बता रही हूँ, सो दैट आपके पास जब ऐसा केस आए तो आपको ये 4-5 प्रिस्क्रिप्शन ना देना पड़े, आप डायरेक्टली ये प्रिस्क्रिप्शन जो मैंने दिया है। तो अभी ये जिस वे से आई, कवरिंग्स थे, मतलब वो सिंपथी चाहिए था उसे, उसे कंसोलेशन चाहिए था, काफी सिंपैथेटिक थी, मेरे बारे में भी पूछ रही है, सब लोगों के साथ भी अच्छे से रहती थी। फिर क्या मिस हो रहा है, क्यों नहीं ये ड्रग्स हेल्प कर रही थी, मतलब कुछ तो चीजें जो हम एनालाइज नहीं कर पा रहे थे मैं, और कुछ तो चीजें जो वो समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे। ठीक है। देन अभी जब नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में आई थी फॉस्फोरस के बाद, तो बैठी थी वेटिंग में। फिर मैं चिंता में कि यार वो उसके फुंसी वैसी की वैसी ही है, फंगल वैसे ही है, और फिर भी ये मेरे पास आ रही है, मतलब 20 days हो गए थे, 20 नहीं 1 month हो गया था। एंड आई तो फिर अगेन शी केम, देन शी वाज नॉट वरीड एट ऑल, शी वुड नरेट होल थिंग फ्रीली, वापस वो सब चीजें जो उसकी चलती रहती थी ना वो बताती थी, कि अभी तो कॉलेज में ये हुआ, ऐसा हुआ, मम्मी ने ये बोला, वो बोला, ये दोस्त तो ऐसा ही है, मैं इसको मैसेज नहीं करूंगी, ये तो जो वही है उसका चाल है। और बीच बीच में हंसेगी, फिर नहीं बोलेगी, फिर बोलेगी। फिर मैं पूछी कुछ स्ट्रेस, तो बोली नहीं कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले वाली स्ट्रेस तो फर्स्ट कंसल्टेशन में बोल दिया था उसने। बट अभी बोली कुछ स्ट्रेस नहीं है, मैंने बोला कि यार इतना इसका फंगल और ये बढ़ता जा रहा है पर इसको कोई स्ट्रेस ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि कौन ऐसा हो सकता है जिसको स्ट्रेस ही नहीं रहेगा, और ये हर चीज इतने विस्तार से बताती थी, इतने फ्रीली करती थी। मैंने कहा कि अभी दूसरा एंगल लेते हैं, इतनी ज्यादा प्रिविलेज है, कोई चिंता ही नहीं है, और एकदम रिलैक्स रहती है, पेशेंट देखने देती है, बोलती नहीं नहीं देख लो मैं आराम से आती हूँ। तो मैंने बेलाडोना, बस बट ऑब्वियस मैंने बेलाडोना प्रिस्क्राइब किया, कि एकदम फ्री वाली लड़की है, लिबर्टी, मतलब एकदम फ्री रहती है, हर चीज अच्छे से करती है, कोई चीजों को इतना सीरियस नहीं लेती है, और एकदम लाइट है। बट अगेन नो रिजल्ट। तो अभी ये 3 ड्रग्स दे दी थी, पर कोई भी रिजल्ट नहीं आया। तो अभी क्या लग रहा है आप लोगों को, अभी किस एंगल में हमने जाना चाहिए? सो इवन टू मी शी सेड एवरीथिंग इन, अभी मैंने जो एनालाइज किया, इवन टू मी शी सेड एवरीथिंग इन फर्स्ट कंसल्टेशंस विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, was smiling as if I am her friend. जो मैंने पहले बताया, द गर्ल wanted the world around her to be like her, open, simple, clear. She didn't wanted any manipulations, any harshness, good people around her. So मैंने अभी ऐसा एनालाइज किया कि यार चल कम्युनिकेटिव तो है, पर सिंपति, सिर्फ सिंपति प्लेन नहीं चाहिए बंदी को, और कुछ, और कुछ है जो अपने को नहीं समझ रहा, हम बहुत ज्यादा डीप जा रहे हैं, कुछ तो शायद सुपरफिशियली होगा। तो ना वो सब चीजें हर जगह क्यों ऑफेंड हो जाती है, क्यों बुरा लग जाता है? हो सकता है कि वो इतना सिंपली सब चीजें सबको बताती थी, बट उतना सिंपली लोग नहीं लेते थे, तो कोई उसे वैसे रिस्पॉन्ड ही नहीं करता था, रिएक्ट हो जाता था, और ये ऑफेंड हो जाती थी। तो ऐसा कौन होगा, ये इतनी सारा कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, तो उससे भी ऑफेंड हो जाएगा, और क्यों हो जाएगा? इसी कैसी दुनिया चाहिए अपने आजू बाजू, या कैसे लोग चाहिए? तो मुझे यहाँ पे लगा कि एक तो चीज उसे चाहिए कंपनी, ओके, उसे कंपनी चाहिए, और वो कब खुश रहती थी उसके लोगों के साथ, उसे जैसे लोग चाहिए उनके बीच में। अगर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई भी ठीक से बात नहीं किया, तो वही वो नाराज हो जाती थी, इसका मतलब नाराज हो, हाँ नाराज हो जाती थी। और कब खुश रहती थी? लोगों के साथ। तो ये था कंपनी डिजायर, ओके। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी व्हेन शी यूज्ड टू गेट पीपल लाइक हर, so she was cheerful in company. Okay, so this was my entry. Okay. Okay.
So here are the rubrics. So first thing what I thought was she was very naive. Okay, कौन इतना इजीली इतना सिंपली सब चीजें अपना बता देगा? कौन? कोई भी कुछ थोड़ा सा तो फिल्टर रखेगा कि यार डॉक्टर है, मैं ये सब बताऊं नहीं बताऊं, पर उसने सब चीज इतने भोलेपन से बता दी। नेव मीन्स क्या? भोला। मतलब जिसको वर्ल्डली उतने एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, जो जज करके आपको जवाब नहीं देगा, जो एक भोलेपन में सब चीजें बता देगा, दैट इज नाइव नेव। सो ये काफी ही नेव थी। सेकंड चीज थी कि वो हर चीज, एक सिंपल क्वेश्चन पूछो तो वो भी इतना बड़ा बड़ा के बताती थी, अच्छी से समझा के बताती थी। ये था कम्युनिकेटिव एक्सपांसिव। ओके। थर्ड चीज थी ट्रूथ टेलिंग प्लेन। प्लेन मीन्स क्या? आप अगर कभी ब्रेड खाते हो, ब्रेड प्लेन कैसा रहता है? एक न्यूट्रल टेस्ट होता है। उसपे बटर लगाओगे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। जो लोग, और प्लेन मीन्स प्लेन। तो फिर ये कैसी लड़की थी? जो भी चीजें बोलती थी जैसा है वैसा बोलती थी, दैट इज प्लेन। सो इसके मन में जो भी इसे सच लगता था, इसके अकॉर्डिंग जो सच था वो सिंपल आपको वो बता देगी, इफ एंड बट नहीं लगाएगी, या उसको चेंज करके शुगर कोटिंग करके, या वो कैसे लोगों को लगेगा ये भी नहीं सोचती थी, जैसा आता था वैसा बता देती थी। इसलिए उसने वो हिस्ट्री बताई बॉयफ्रेंड की, बाकी चीजें घर की भी कोई चीजें रहती फटाक से बता देती थी, मुझे भी मेरे बारे में पूछती थी और फटाक से राय दे देती थी। तो ये था ट्रूथ टेलिंग प्लेन। एंड कंपनी डिजायर। अब कंपनी क्या रहती है, बोविस्टा की कंपनी क्या है? नरेंद्र गुप्ता सर ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है वीडियो पे, कोई द्वारका के सेमिनार में। तो ना, बोविस्टा बहुत ही सिंपल और अच्छे दिल का बंदा होता है। उसके मन में कोई चालाकी नहीं रहती है। तो उसे लगता है कि ऐसे ही भोले भाले लोग रहना चाहिए। वो जब जो चीजें जिस वे से बताएगा आपने भी उसको वैसा ही लेना चाहिए। वो मैनिपुलेट नहीं करेगा आपको, लेकिन उसको जब मैनिपुलेशन मिलता है, उसको कोई रूडनेस मिलता है, तो वहीं वो क्लोज कर देता है। ठीक है। तो जैसे कभी हम सेमिनार हॉल में बैठे हैं, हमारे आजू बाजू काफी सारे लोग रहते हैं, लेकिन हम सबसे तो बात नहीं करते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो आपको बस हाय हेलो थोड़ा सा करके अपना अपना काम कर रहा है, आपने कुछ आगे के क्वेश्चन पूछे और वो उसमें से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है जैसे आपको चाहिए, तो ये लोग हो जाते हैं, ये कंपनी नहीं रहता है। कंपनी में जिसके साथ आपका रहने का, जिससे आप शेयर करने का सोचो, जिसको आप आपकी चीजें बता पाओ। तो बोविस्टा कब खुश रहता है, कब चीयरफुल रहता है? जब उसको उसके तरीके की कंपनी मिलती है जो उसकी चीजें समझ पाए। तो इसलिए ये लड़की भी देखो ना, हर जगह क्यों ऑफेंड हो जाती थी, क्योंकि वो अपनी चीजें प्लेनली ट्रुथ से हर चीज बता देती थी, और सामने वाले सब वैसा लेते नहीं थे। इसकी बातों में उतनी इंटेंसिटी रहती नहीं थी, सिंपल बताती थी, बट लोग उतने सिंपल नहीं लेते थे। उसके बाद ये बुरा ही से लग जाता था। तो ये हरदम इस लड़के का डिजायर हर जगह क्या था, भाई से भी क्या था, कि भाई तू मेरा सुन, मेरा समझ, और बस इतना ही रहा। कंसोलेशन उसने भले बोला, लेकिन उसका मतलब था कि तुम ऐसे ऐसे रहो कि तुम मुझे समझ पाओ, बस। तो बोविस्टा का रिक्वायरमेंट यही रहता है कि ये मेरे आजू बाजू भी जैसा मैं हूं वैसे रहो, मैं जो चाहता हूँ वो आप समझो, दैट्स इट। ओके। देन लोकेसिटी ओपन हार्टेड, जो ये थ्रू आउट की। ओपन हार्टेड मतलब जो अंदर हार्ट के वही बाहर, आर पार। तो ये बोविस्टा पर्सनालिटी जो रहती है, जैसी चीजें रहेगी, जो ट्रुथ रहेगा, जैसा रहेगा वो वैसे ही बताएगी। ये लड़की हर चीज ओपन हार्टेड बताती थी। लोकेसिटी अलग हो गई, उसका कुछ हेड एंड टेल नहीं रहता है, कुछ भी बंदा बोलते जाएगा, बट ये दिल से हर चीज, अपनी सच्चाई, अपने बारे में कुछ भी नहीं बोल रही थी, अपनी सच्चाई आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तो ये लोकेसिटी ओपन हार्टेड। कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज उसे बतानी भी है, वो अच्छे से सीधे से आपको बताएगी। ठीक है। सो ये रूब्रिक्स थे जिसपे से मैंने उसको बोविस्टा 200 प्रिस्क्राइब किया, 3 रिपीटेशन दिए थे फर्स्ट विजिट में। उसके 7 डेज में ही लाइट होना शुरू हो गया। एंड देन 1 मंथ तक मैंने 20 डेज तक वेट किया, 20 डेज बाद 1 M प्रिस्क्राइब किया। 1.5 महीने में पूरा लीजन उसका क्लियर हो गया। ठीक है। लेट मी शो यू द पिक। So this, if you can see, you can zoom it. So this is just with Bovista 200 followed by 1M. No external application. Absolutely कुछ भी नहीं दिया है। मानसी दिख रहा है ना?
Yes, ma'am. It is visible. ओके, किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज? सो बोविस्टा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसका पूरा नाम है बोविस्टा लाइकोपेरिडोन। ओके, कॉमन नेम है पफ बॉल। ओके, अगर आप इसको देखोगे, एक सेकेंड, ऐसा दिखता है। इट्स अ टाइप ऑफ फंगाई। ओके, इट इज अ जीनियस ऑफ फंगाई नोन एज पफ बॉल्स। अगर आप उसका लुक देखोगे तो कैसा है, एकदम फूला फूला है। ठीक है, तो अगर आप इसके बारे में जहां भी पढ़ोगे, लिटरेचर्स पढ़ोगे, रडार, एलएस, तो हर जगह इनके बारे में वही ये पेशेंट के बारे में जो जनरलिटीज बताई गई है, जो सिम्टम्स बताई गई, यही बताया गया है कि ये लोगों को एनलार्ज स्वेलिंग फीलिंग्स होती है। तो अगर आप डॉक्ट्रिन से कंपेयर करोगे तो कैसा है, ये एकदम सूजा हुआ दिख रहा है। ओके, तो जैसे ये सूजा हुआ है वही आपको वो पेशेंट में भी मिलेगा। कोई ना कोई, मेरा ये पेशेंट ने तो नहीं बोला, लेकिन जो लिटरेचर पढ़ा उसपे से मैं बता रही हूँ कि ये लोगों को कंटिन्यूस वो फीलिंग आती रहती है, स्वेलिंग की, इडिमा की। ओके, एंड बाकी बोविस्टा के बारे में जो रडार पे की नोट्स हैं, मैंने सिंपल रखने का कोशिश किया है। बहुत ज्यादा इधर उधर करेंगे तो सिंपल भी रेमेडी मिस होती है। तो इसके बारे में बोला गया है, लोकेसिटी एंड अनरिजर्व कन्वर्सेशन। अनरिजर्व मीन्स क्या, मतलब कोई भी चीज वो रिजर्व करके नहीं रखेगी बात के लिए, वो सबका सब चीज अभी ही बता देगी। उसे जो बोलना है वो हर चीज आपको बताते ही जाएगी। ओके, ओपन हार्टेड, टेल्स द प्लेन ट्रूथ, नाइट, hysterical element plus menstrual problems, alternating moods, quarrelsome, takes everything in a bad part, restless, awkward in speech and action, stutters, drop things, staring, looks fixed on a point, absent-minded, dull, sometimes closed, can't connect, goes in and out of eye contact, sensitive, एग्रेवेशन, क्रिटिसिज्म। ओके, ये रडार में बोला गया है। अगर आप उसकी जर्नी देखोगे तो काफी अलग है जर्नी। मतलब बोविस्टा भी एम्बिशियस होता है, उसे जो उसके एम्बिशन चाहिए वो करता है, पर इसका रास्ता कभी भी सीधा रहेगा। वो हर जगह अपनी सच्चाई से चीजें करेगा, जो दिल में है उसी में वो बताएगा। कभी भी इसमें आपको कोई ये अपना मैनिपुलेट करके, हिपोक्रेट कुछ भी करके अपना रास्ता नहीं ये करेगा। ये लड़की भी टॉपर थी, ब्रिलियंट थी, उसके थ्रू अपने पढ़ाई से ही उसने हर चीज अपनी हासिल की। ठीक है, आप अगर जर्नी देखोगे तो वहां पे आपको एक भी रूब्रिक नहीं मिलेगा मैनिपुलेशन का, हिपोक्रेसी का, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा सीधे साधे रहते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल, आपको मूवीज याद है, अ, किसी ने अगर देखी है तो जो अनाड़ी मूवी है वेंकटेश की, उसमें अगर याद है आपको तो वो पूरी मूवी में एकदम ऐसे सीधा साधा रहता है। उसकी मदर ने उसको दुनियादारी से दूर रखा रहता है। एक जगह वो फिर काम करने जाता है जहाँ पे करिश्मा कपूर होती है, तो उसका रक्षक के लिए जाता है। तो वहां पे भी उसको क्यों रखते हैं उसके भाई, क्योंकि इतना भोला भाला, ये ना छेड़ेगा मेरी बहन को ना कुछ करेगा, सीधा साधा, इसे जो बोलेंगे ये सब करता जाएगा, एकदम सीधा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा, जो है वो वैसा ही करेगा। पिक्चर देखिए आप, वो टिपिकल मूविस्ट है। उसमें करिश्मा कपूर को कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता है, तो उसे पता चलता है ये लड़का तो बड़ा सीधा है, तो उसे बोलते हैं मुझे यहाँ ले चलो ना आप घुमाने के लिए। तो वो उसके बोलने के लिए, उसको ये नहीं समझता कि उसके भाई इतने स्ट्रिक्ट है, वो उसको कैसे भी करके उसको घूमने को ले जाता है बाहर। ये नहीं सोचता कि उसके बाद क्या गया, उसके बाद उसको बहुत मार पड़ती है। ये है उसका भोलापन, ये है नाइट। उसका इंटेंशन कुछ खराब नहीं रहता है, कभी भी बोविस्टा का इंटेंशन खराब नहीं रहेगा, आपको हर्ट करने का नहीं रहेगा। उसके दिल में जो रहेगा वो सब वो आपको वैसा के वैसे बताएगा। तो उसमें टिपिकल है वो लड़की के लिए कुछ भी करता है। आगे जाके उसमें सीन देखोगे देखोगे तो करिश्मा कपूर बोलती है कि ये धागा बांध दो तो इससे मेरी सबसे ज्यादा रक्षा होगी और आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ऐसा कुछ तो बोलती है। वो मंगलसूत्र होता है, उसे उतना भी नहीं पता रहता है, वो मंगलसूत्र भी उसे बांध देता है। अभी सोचिए वो विस्टा कैसा रहेगा। तो इतना सीधा बना, इतना भोलापन। ठीक है, तो दैट इज टिपिकल बोविस्टा।
और एक अगर आपको सेकेंड एग्जाम्पल दूं तो वो है पड़ोसन का सुनील दत्त। सुनील दत्त सर, अगर आप लोगों ने देखा है, वेरी ओपन हार्टेड, देखो कैसे बैठा है, ऐसे पैर ऊपर करके, ऐसे ही वो बैठी थी मेरी पेशेंट, ऐसे करके कौन बैठेगा ऐसा। एक तो एकदम सीधा, जिसको कुछ समझ नहीं होगी, या फिर कोई सोचेगा ठीक है ना मैं एकदम आराम से बैठा हूँ। और वो मूवी में भी आप देखोगे तो उसको सायरा बानू पसंद आती है, और वो उससे कैसा कैसा रिलेट करता है, कैसे बात करता है, एकदम ही भोलेपन में। फिर उसको बीच में किशोर कुमार आता है जो सब मदद करता है, क्योंकि ये बड़ा ही भोला है। तो जो भी मूवीज में पहले गांव से आते हैं, शशि कपूर भी कोई मूवी में जिनको लोगों की डिप्लोमेटिक चीजें नहीं समझ में आती, कुछ नहीं, वो अपना सीधा 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 चलते रहते हैं। सो दीज ये सब केसेस जो रहते हैं ये बोविस्टा रहते हैं। सुनील दत्त भी बहुत ही क्लासिक है, अगर आप हाफ मूवी देखोगे ना, वो भी यही एक्सपेक्ट करता है कि सब लोग उसके जैसे हैं, सायरा बानू इतनी एजुकेटेड इतनी अच्छी होती है, और ये मतलब उससे बड़ी होती है कोई कोई चीजों में, पर इसको क्या लगता है, नहीं नहीं मैं तो इतना अच्छा है, वो भी इतनी अच्छी है, सब हो जाएगा। ये लोग आगे का इतना नहीं सोचते, सभी का सोचते हैं और अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं। तो मेरे ख्याल से बोविस्टा आपको थोड़ा तो समझा होगा। उसके बारे में अगर और मैं बताना चाहूँ तो यही है कि वो लोग चालाक नहीं रहते, सबको अपना बनाना चाहते हैं, सबको अपने जैसे सोचते हैं, कोई लोगों से कोई ज्यादा गिले शिकवे भी नहीं रखेंगे। आप अगर उनसे बात नहीं करोगे फिर भी वो कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, ठीक है। और उन्हें कंपनी अच्छी उनके जैसी चाहिए, ओपन हार्ट वाले, सच्चे दिल वाले, वहीं वो खुश रहेंगे। बोविस्टा का बहुत ही कॉमन प्रिस्क्रिप्शन है, चेयरफुल कंपनी इन। ओके। एंड हाँ, और एक मूवी सलमान खान इन बजरंगी भाईजान, उसमें भी आप देखो तो एकदम नेमली उसको जो करना है वो करता है, वो बच्ची को लेके जाता है। वहां भी वही दिखाया है कि एक भोला आदमी कहाँ तक जाता है, किस वे से जाता है। तो ये लोगों में कोई भी फिल्टर नहीं रहेगा, मैनिपुलेट नहीं करेंगे। ओके। अगर जर्नी भी देखने जाओगे इस लड़की की तो ये बहुत ही सिंपल थी, ठीक है, काफी एम्बिशियस, बहुत अच्छे से पास हुई, उसके बाद अच्छे लोगों के साथ रहने का कोशिश किया, लेकिन उसको जैसा एनवायरनमेंट चाहिए था कॉलेज में वैसा मिला नहीं। वहीं पे उसके एक्ने चालू हो गए, वो किसको बोले, हर चीज ऐसी, घर पे आया, घर पे आई, घर पे थोड़ी थोड़ी अपनी चीजें बताने लगी, लेकिन वहां पे भी कोई उसको नहीं लग रहा था कि उसकी चीजें कोई पूरी समझ पाता है, ठीक है। और क्यों नहीं उसको लगता था, क्योंकि वो हर जगह अपने जैसे ही सबको समझती थी, हर कोई तो उतना नेव नहीं रहेगा, इतने ओपनली कोई बताएगा नहीं जितने वो बताती थी, तो ये जगह पे ही वो डिसअपॉइंट होती थी। लेकिन जो किसी ने डाला कि इग्नेशिया या फॉस्फरस, फॉस्फरस इंटेलिजेंट भी रहता है और बहुत शाना भी रहता है, चाइल्डिश होता है, ठीक है। The repertorization chart: communicative, expansive, loquacity, open-hearted, knave, truth telling the truth plain, cheerful company है। इस पे से ही मैंने प्रिस्क्रिप्शन दिया था। और फर्स्ट ड्रग जो मैंने दिया था पल्सटीला, पर पल्सटीला काफी ही सेल्फिश होता है, मैनिपुलेट करता है, सिंपैथी चाहिए रहता है, प्यार दो प्यार लो, अगर आप प्यार दोगे नहीं तो वो आपको भी नहीं देगा, ठीक है। लेकिन इसका ऐसा नहीं है, ये सब चीजें करती जाती है, करती जाएगी, इसका कोडिंग कर देगी, इसके लिए ये वर्क कर देगी, वो कर देगी, पर कोई इसको अच्छे से नहीं बात किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उसे बुरा लगता था। बहुत ज्यादा क्रेव नहीं करती थी कि मेरे लिए ये करो वो करो। तो पल्सटीला तो थी ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेल्फिश नहीं थी। फॉस्फरस नेव रहता है पर सेल्फिश होता है थोड़ा, वो भी चाइल्डिश रहता है, हिपोक्रिटिक रहता है, इसलिए, और फॉस्फरस ने काम भी नहीं किया। मैंने बीच में और एक ड्रग दी थी कैनबिस इंडिका, मुझे लगता था ये इतनी लाइट रहती है यार, इतना लोगों का करती रहती है, तो ये कैनबिस तो नहीं, तो मैंने कैनबिस इंडिका दिया था। बट कैनबिस को इतनी कंपनी नहीं लगती है, वो हर चीज अपने बलबूते पे करता जाता है, उसे किसी की जरूरत नहीं रहती है। लास्ट ड्रग जो मैंने बताया था बेलाडोना, लाइट डिजायर प्लस लिबर्टी और कैरेट डिजायर फास्ट। ओके। और अगर हमको बोविस्टा देना है तो सबसे मेन जो याद रखना है वो है नेव, कम्युनिकेटिव एंड ट्रूथ टेलिंग प्ले, ठीक है, एंड चेयरफुल कंपनी, ये सब आया कि वी शुड प्रिस्क्राइब बोविस्टा।
और एक केस मेरे पास आया था, अ, एक लेडी का था, तो शी हैड इडिमा लेग्स पे, आई थिंक शी वाज इन फेलियर, सीसीएफ। तो इडिमा उसके पैरों पे था सब, और थोड़ा सा थकान थी, क्लासिक फीचर्स थे। बट जब वो हिस्ट्री देने आई, तो एकदम सिंपल, मैंने बोला आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ हो रही है, सीधा बोला कि नहीं, मैंने मेरी बहू को ये बोला, उसने ये नहीं किया। मैंने उसे बोला कि खिचड़ी चढ़ा दो, खिचड़ी मुझे दे दो आज खाने के लिए। मैंने कहा अच्छा। तो बहू ने खिचड़ी दी, गरम बनाई पर मुझे ठंडी दी, मैंने नहीं खाई। मैंने कहा फिर क्या खाया? फिर कुछ भी नहीं खाया मैंने, मैं वैसे ही रह गई। और मुझे इतने गैसेस होने लगे, मेरे गैसेस पूरे निकलने लगे, पूरे रूम में निकलने लगे, वैसे कि वैसे ही मैं रह गई, और मैं वैसे ही सो गई। ये चीज उसने ऐसे ही आके मुझे बोल दी। उसका एज था 52 ईयर्स। तो फिर इस पे से मैंने सोचा कि यार ये खिचड़ी तक बताना ठीक था, ये आगे का क्या क्या बता रही है, मतलब ये कोई भी ये तो पूछा भी नहीं मैंने, इतना सारा मैंने पूछा ही नहीं। मैंने बस थोड़ा सा ही पूछा था कि कैसे हो, क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसने ये टॉपिक बोला। फिर मैंने सोचा कि इस पे से हमने क्या एनालाइज किया, ट्रूथ टेलिंग प्लेन, कम्युनिकेटिव। और उसने सोचा ही नहीं, जैसा है वैसा ही बोला। उसको बोविस्टा दिया था, बोविस्टा 30 अल्टरनेट नाइट फॉर 3 नाइट्स। उसका पैर का इडिमा कम हुआ, शी वॉज बेटर आफ्टर 3 मंथ, एंड शी रिस्पॉन्डेड वेरी वेल टू बोविस्टा। तो कोई भी एज रहने दो, आप बच्चे रहने दो, बड़े रहने दो, और या फिर बूढ़े रहने दो, वो लोग फिल्टर रख के आपसे बात नहीं करेंगे। बोविस्टा को जो लगता है, जैसे लगता है, ओपन हार्टेड आपको बोलेगा। आपको ही लगेगा अरे यार, ये बंदा तो दिल की बात बिना पूछे ही बोल देता है, इसे तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर ये लोकेसिटी सिर्फ नहीं रहती है ओपन हार्टेड लोकेसिटी, जिसके पीछे रीजन रहता है कि ये बहुत भोला रहता है। ठीक है, तो आई थिंक आई एम डन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंटली लिसनिंग माय सेशन। if any queries, do message. So Mansi, I am done. Once again, thank you HHF, and thank you 360 degree homeopathy. आई होप एवरीवन गॉट दी रेमेडी। सिंपल ही रखने का कोशिश किया है, कोई क्वेरीज या कुछ है तो आप लोग डाल सकते हो। Thank you so much, ma'am. So मानसी, everyone in the yes, ma'am. एनी क्वेरीज, लाइक आपको कुछ लगा, कुछ समझा नहीं है कोई चीज, व्हाट यू आल्सो, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। Ma'am, ma'am, case presentation and as you have compared the drugs, like you have compared Bovista with Phosphorus, Belendola, Pulsatilla. That was very informative, and I learned a lot today. सॉरी, Hello, yes, ma'am. Am I audible? यस यस यस, आई जस्ट मिस द Yes. लास्ट पार्ट। So, ma'am, I'm saying I have learned a lot ओके from ओके, you, थैंक यू सो मच। and the comparison between all the medicines were very very nice, ma'am. As you as you compare the medicines and you related with all the movies in this way, it is very easy to understand and it is easy to remember also. ओके ओके ओके, So any questions from the audience? Dr. समथिंग Priya great. Jain is also saying it is very informative. Marinder Kaur is saying thank you so much, ma'am. Very well explained. So where should I see this now, in the chat box? Yes, ma'am. Dr. Ashish Kumar is also saying thank you, ma'am. Very informative. Thank you And so much, everyone. Okay. ma'am, it's our pleasure to have you today, and we feel very good. Like we are having this collaboration with HHF, and day by day we are learning so much from our wide Materia Medica in this beautiful manner. Thank you so much, ma'am. Okay, okay. Thank you so much for giving me this opportunity. Okay. Okay, ma'am. It's time to Okay. wrap up. Bye bye, ma'am. Okay.